Hello, hello. Am I audible? Yes, sir. ओके तो ठीक है। आज हम लोग जो अपना टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं दैट इज योर बायोपेस्टिसाइड। So I hope you all remember what all was discussed during our last classes. Do you all remember? Hello, Isha and Anika. Am I audible? Yes, sir. Yes, तो sir. क्या आप लोग को याद है हम लोगों ने जो भी अपनी लास्ट क्लासेस में किया था? आई होप आप लोग को याद होना चाहिए। Yes, sir. डोंट वरी, अभी कोई टेस्ट या क्विज नहीं ले रहा हूँ मैं। आई सिंपली बी प्रोवाइडिंग यू सर्टेन व्हाट राइटिंग मटेरियल टुडे। Okay, sir. All right. So I just want to ask you people that do you people remember whatever was taught during our last two classes? Yes, sir. Okay then. I'll be presenting up my slide and you will be uh, noting down these tables. Okay. Okay, sir. So are my slides visible to you? Yes, sir. Okay then. This is your first table. Actually, during our previous classes, I told you that the Bacillus thuringiensis, your bacterium that was producing the Bt toxin, that is also known as the cry protein. It is synthesized from cry gene, CRY, cry, right? Mm. Yes, sir. So what basically this cry gene do? They synthesize a protein that is also known as cry protein, and this protein is on the basis of its domains, on the basis of its number of amino acids. It is basically divided into six different classes. That is cry one, cry two, cry three, cry four, cry five, and cry six. So as you can see in this particular table, the genes for each cry protein is represented. Along with it, its subclasses like cry1 again has various subclasses. Like it has five subclasses: cry1A, cry1B, cry1C, D, and cry1E. And cry1A again has three further subclassifications. And each of the protein in its molecular mass is represented in the next column. Along with it, which Bacillus thuringiensis strain is producing this particular protein. Okay, so you can see the gene, and similarly the cry protein is being produced. And in the fourth column you are seeing the target, that whichever insect species its target. So as you can see, most of these are against the Lepidoptera. Lepidoptera is your class which comprises of moths, butterflies, and other such kind of insects. Okay, so most of these are against the Lepidoptera or the Diptera. And at last, if there is any specific what any specific point, so it is mentioned to the remarks. So what you people are going to do is first of all give it a quick look and start writing it, because this one is important and you should remember these things. Then I will start with the explanation for this particular table. So quickly note it down. You just have 2 minutes for this one. Okay, first tell me, is my voice clear or you have to struggle to hear it properly? Hello, Yes, sir. is my voice clear or you have to struggle to hear it properly? Yes, sir. What sir, low is clear. Coming? क्या चीज़ मैं सॉरी सुन नहीं पाया? सर थोड़ी सी लो आ रही है वैसे. थोड़ी कम है। ओके। Yes, sir. और अब कैसी है? So fine. अब ठीक है। Yes, sir. ओके।
I hope the slide is clearly visible to you because the font is somewhat ये थोड़ा सा मतलब blurry है. तो क्या आप लोग स्लाइड को ठीक से पढ़ पा रहे हो? Yes, sir. ओके. डन. नोट कर लिया सभी ने? No, sir. Me. यस और नो? No, sir. No, डू sir. इट क्विकली. एंड वन मोर थिंग, मैंने आपका क्लासरूम पर आपके लिए कुछ रीडिंग सेक्शंस सेंड किए हैं. तो एक बार आप उनको सभी ध्यान से देख लीजिएगा और उनको रीड कर लीजिएगा. ठीक है? दिस विल हेल्प यू इन फ्रेमिंग योर आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. हु इज योर क्लास रिप्रेजेंटेटिव? Chipra ma'am. नो, आई एम नॉट आस्किंग काउंसलर, आई एम आस्किंग सलमान. Salman. Salma. ओके. Yes, sir. Salman. सलमान, डू वन थिंग, फ्रेम ए व्हाट्सएप ग्रुप फॉर योर क्लास और उसमें आप मुझे ऐड कर लीजिए. ठीक है? एक आप सेपरेट अपने क्लास का ग्रुप बना लीजिएगा सो दैट मुझे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो इट शुड बी रीचेबल टू यू विद इन नो टाइम. ऑलराइट? Okay, sir. ओके. इज इट डन? Yes, sir. Done. Done. Okay, good. So
now let's understand that what basically is this whole story. You might have already heard it earlier क्योंकि हमने एक बार ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो बेसिकली है क्या, ये जो बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है, दिस इज ए पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन जिसके बहुत सारे आपने अब ये सीरोटाइप्स देखे हैं. तो ये जो जितने भी बैक्टीरियम है इसको हम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से यूज करते आ रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इट्स इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी. तो इनिशियली हम लोग क्या करते थे, बैक्टीरियम को हम बहुत लार्ज पॉपुलेशन में ग्रो कराते थे. बहुत लार्ज पॉपुलेशन में ग्रो कराने के बाद हम इसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, प्लांट के ऊपर हमने स्प्रे कर दिया. उसे होता क्या था, इसके अंदर जो एक पर्टिकुलर टॉक्सिन बनता है जिसका नाम आप जानते हो, दैट इज क्रायोटॉक्सिन. वो होता क्या, क्रिस्टलाइन टाइप का एक प्रोटीन है. वो प्रोटीन जैसे ही प्लांट के पार्ट्स के ऊपर जाता है उसके ऊपर एक लेयर उसकी फॉर्म हो जाएगी, और जब भी उसका उस पर्टिकुलर प्लांट का पेस्ट यानी कि उसको उसके ऊपर फीड करने वाला इंसेक्ट आएगा, उसके ऊपर फीड करेगा, ये पर्टिकुलर जो आपका सॉल्युबल ये प्रोटीन है, ये उसके जैसे मिड गट रीजन में जाता है तो वहां पर पीएच जो चेंजेस है उसकी वजह से सॉल्युबलाइज हो जाएगा. जैसे ही सॉल्युबलाइज होता है इंटेस्टाइन में, आपको बताइए कि पीएच कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक. इंटेस्टाइन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टमक, इन इंटेस्टाइन बेसिक पीएच होता है वहां पर. बेसिक. बेसिक. ठीक है, स्टमक के अंदर एसिडिक होता है. तो जैसे ही ये आपके उस रीजन के अंदर जाता है तो बेसिक पीएच होने की वजह से ये प्रोटीन जल्दी से सॉल्युबलाइज होगा. सॉल्युबलाइज होते ही इसके एन टर्मिनल और सी टर्मिनल जो दोनों डोमेन्स हैं उसके बीच में कुछ सेक्शंस पर कट लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो अभी तक क्रिस्टल प्रोटीन था ये इनएक्टिव स्टेट में था. बट जैसे ये क्लीविंग वाला एक्शन हुआ सॉल्युबलाइज होने के बाद में, तो इसका जो एंड डोमेन वाला जो रीजन है वो एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ये एक्टिव टॉक्सिन फिर आपको पता है कि आपकी जो इंसेक्ट है, जो पेस्ट था, उसकी विलाय सेल्स यानी कि जो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्टिव सेल्स थी, उन सेल्स के ऊपर जाकर के स्टिक करता है और वहां पर फिर अपने एक्शन मैकेनिज्म की वजह से वहां पर कट लगा देगा. कट लगाएगा किस तरीके से कि जो सेल्स है वो लाइज डाउन हो जाएंगी, उनके अंदर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे. याद है ना आपको वो 7 हेलिकल अल्फा हेलिकल डोमेन्स जो हमने दिखाए थे एक बार पहले डायग्राम में, वो डोमेन्स वहां पर पीएस डाउन कर देंगे, पोर्स वहां पर क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर आ जाता है सेल का, और जो सेल के बाहर एक्सटीरियर एनवायरनमेंट का मटेरियल है वो अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली सेप्टिसीमिया हो जाता है इंसेक्ट को. उसकी पूरी मिडगट जो है वो धीरे धीरे राइस हो जाएगी. इंटेस्टाइन को सेप्टिसीमिया हो गया है, बाहर से वो फूड नहीं ले सकता क्योंकि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक ऑलरेडी लाइज डाउन हो गया, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से आपका ये ऑर्गेनिज्म किल हो जाता है. ठीक है, तो ये जो आपका एक्टिव वाला पार्ट है यानी कि आपका जो ये क्रिस्टल प्रोटीन है, इसके 3 मेन सेक्शंस होते हैं. एक ही प्रोटीन है, एक ही प्रोटीन का आपको पता है, एक एन टर्मिनल डोमेन होता है, एक सी टर्मिनल डोमेन होता है. जो एन टर्मिनल डोमेन है वो तो है आपका एक्टिव टॉक्सिन, और जो एन से लेकर के सी डोमेन में जो स्टार्टिंग वाला एन वाला पार्ट है वो एक्टिव टॉक्सिन है, और उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं प्रोटॉक्सिन, क्योंकि वो क्लीव या लाइज डाउन हो जाता है, वो हट जाता है बाद में. ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मेन काम करने वाला साइड कौन सा है, ये एंड डोमेन वाला रीजन है इसका. ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे. अभी डायग्राम में इसका आपको दे दूंगा आज या कल की क्लास में. और इसके अलावा जो आप लोग को याद रखना है वो है इसके 4 क्लासेस, जैसा आप लोग देख पा रहे हो. ये मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ सेक्शंस को. अगर आप देखें ये C1 के जितने सेक्शंस हैं यहाँ से लेकर के A B C D और E, इनके 5 सब क्लासेस हैं, और ए के भी बाकी आगे 3 सब क्लासेस है, A B और C. है कि अगर आप देखो तो मोर और लेस ये प्रोटीन लगभग लगभग सेम साइज का है, 133 131 और 133 किलो डाल्टन के ये सेक्शंस हैं. बट इनके अगर आप देखो तो ये अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन से निकल रहे हैं, इनके प्रोटीन में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए इनके डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं इन तीनों प्रोटीन्स के. ऑल्दो इनकी पूरी पूरी क्लासेस क्या है, ये पूरे लेपिडोप्टेरा आपकी जो क्लास है उसी को ये इन्फेक्ट करता है. ठीक है, बट है क्या, ये जो आपका हर एक क्राई प्रोटीन है इसके अलग अलग इंसेक्टिसिडल स्पेक्ट्रम हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के इंसेक्ट को अलग अलग तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है. इसके बाद अगर हम बात करें आपके क्राई सेकंड की, तो उसके पास अगन 2 सब क्लासेस है, क्राई सेकंड ए और क्राई सेकंड बी. इसी तरीके से जो आपका क्राई 3 है उसके अंदर भी आपके 3 सब क्लासेस है, क्राई थर्ड ए, थर्ड बी और थर्ड सी. क्राई फोर्थ के अंदर भी आपकी जो 4 सब क्लासेस होती हैं, क्राई फोर्थ ए बी सी और डी. ये मेन 4 सब क्लासेस है जिनको आपको याद रखना है. क्राई फिफ्थ और क्राई सिक्स को हम इतने ज्यादा नहीं यूज करते क्योंकि इनकी सिर्फ निमेटिसिडल एक्टिविटी अभी तक हमने देखी है, और ज्यादा कोई हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी नहीं देखी. इसके अलावा एक हमने और टॉक्सिक देखा जिसका नाम है CYT. CYT क्या है आपका, ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट दिखाता है. किस तरीके से काम करता है, जैसे हमारे आपने देखा था कि ये पैरास्पोर फॉर्मेशन है, तो ये जो पैरास्पोर है इसी तरीके से आपका CYT प्रोटीन भी है जो कि अपनी एक्टिविटी वहां पर डिस्प्ले कर सकता है.
ठीक है, बस इस टेबल में आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। आपको ये सारी सारी चीजें अगर नहीं भी याद रहती हैं, ये डिटेल्स हैं इनके नंबर्स वाली, तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। बस मोटी मोटी सी ये बात याद रख लो कि ये जितने भी सेक्शंस हैं, ये जितने भी आपके क्राइजीन है या इससे निकलने वाले क्राई प्रोटीन्स हैं, ये दो टाइप के आपके प्रोटीन बनाते हैं। कौन कौन से दो टाइप के हैं, इनके नंबर जरूर आप लोग ध्यान से कर लो और इनको लिख लो। एक तो है 70 की रेंज के आसपास का, क्या रेंज है इसकी, 70 की रेंज के आसपास का, और एक है 130 की रेंज के आसपास। ठीक है, अगर आप देखोगे भी तो ये थोड़ा बहुत ही वेरी कर रहा है, जैसे 129 है, यहाँ 127 है, तो लगभग लगभग 130 की रेंज में आपके पास में। तो आप बस क्या याद रखोगे कि एक इनकी जो रेंज है वो है अप्रोक्सीमेटली 130 किलो डाल्टन, और जो दूसरी रेंज है वो है अप्रोक्सीमेटली 70 किलो डाल्टन। ये दो टाइप के प्रोटीन के आपको सेक्शंस में मिलता है। बस इतनी बात आप याद रख लो, तो आपको बाकी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन आप बैक्टीरियम का नाम याद रखोगे, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। अगर इसमें से एक दो के आप स्ट्रेन याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद कर पाते हो तो कोई बात नहीं है, कोई ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ आई? बस आपको दो जो नंबर याद रखने हैं वो है, एक तो 70 किलो डाल्टन और दूसरा है आपका 130 किलो डाल्टन। बस ये मेन आपको याद रखने हैं। इज इट क्लियर? बाकी बात जो आती है आपकी टारगेट की, इसमें टारगेट के नाम आपको याद रख लो तो वो आपके लिए बेटर है। पूरे ऑर्डर का नाम है आपका लेपिडोप्टेरा। ठीक है, इसको तो आप याद रखना ही रखना है, इसको आप नहीं भूलेंगे। सेकंड अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं डायप्टेरा, ये भी आपका ऑर्डर है जिसको आपको याद रखना है, डायप्टेरा। इसके अलावा ये जो सिंपल है इसके अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि कोलियोप्टेरा, ये सब नाम अगर आप याद रख सकते हो तो वेरी गुड, अदरवाइज कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ आई? तो ये टेबल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आपको सब क्लासेस याद रखनी है। क्राई फर्स्ट ए की सॉरी क्राई फर्स्ट की कितनी है, क्राई सेकंड की कितनी है, क्राई थर्ड की कितनी है। बाकी सीरियल आप अपने आप मेंशन कर सकते हो, ए बी सी डी ई, खाली 5 ही है मैक्सिमम। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं है? चलो No, next sir. हम लोग नो जो सर। बात करेंगे दैट इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस से पहले एक हमारा मोड रह गया ना, इसके लिए मैं आपको एक दूसरी इमेज देता हूँ, प्लीज होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड। जस्ट गिव मी a minute प्लीज। ये स्लाइड विजिबल है आपको? Yes, sir. तो यस सर। इसका जो ये वाला पर्टिकुलर एक सेक्शन है, ये नीचे आपको जो टेबल एक दिखाई दे रही है, ये दोनों टेबल्स आप नोट डाउन कर लो। एक तो ये वाली पूरी टेबल, विजिबल है? इसको एनलार्ज करूं? सर ये तो उस दिन नोट डाउन कर ली थी फर्स्ट अच्छा, कर लिया लेक्चर था में। आप लोगों ने, ठीक है। तो फिर आप बस इस वाले डायग्राम को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सिंपली आपको क्या दिखाना है कि बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस आप एक जगह लिखोगे। ठीक है, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से आप दिखाओगे कि क्रिस्टल प्रोटीन है इस तरीके का, ये क्रिस्टल प्रोटीन है। यहाँ पर फिर एक आप वर्म बना देना सिंपली इस तरीके से। ठीक है, ये आप वर्म बना दोगे। वर्म बनाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले कर देना कि इसने वर्म ने ये टॉक्सिन इंजेस्ट किया। इंजेस्ट करने के बाद में इसके मिडगट सेक्शन के अंदर जाकर के सॉल्युबलाइज हुआ है, सॉल्युबलाइजेशन का सेक्शन दिखाओगे। उसके बाद नेक्स्ट दिखाओगे कि प्रोटीन एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपल दिखा देना कि एक प्रोटीन है N2C, ये इस तरीके का सेक्शन है, जिसमें आप बताओगे कि यहाँ पर सॉल्युबलाइज होने के बाद में दो जगह कट लगते हैं, जिसके बाद में ये पर्टिकुलर सेक्शन है जो कि आपका मेन काम करने वाला है, और जबकि ये सारा सेक्शन ट्रंकेट हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो खाली ये एन सेक्शन है, यानी कि आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन है जो काम कर रहता है, एन वाला स्टार्टिंग का। ठीक है, इतना स्टेप दिखाने के बाद में फिर आप दिखाओगे कि जैसे ये एक्टिवेट हुआ, ये पार्ट एक्टिव हुआ, एक्टिव होने के बाद में ये जाएगा कहाँ पर, इंसेक्ट के मिडगट की सेल्स के पास में, जो कि विलाई सेल्स है।
यहाँ जाने के बाद में पूरा पूरा एक बार प्रोसेस दिखा देना सिंपली, ठीक है। उसके बाद में मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्यूजन होगा और मेम्ब्रेन के ऊपर पोर्स बन जाएंगे, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन में सेप्टिसीमिया होगा और लार्वा की डेथ हो जाएगी। बस ये एक बार फटाफट बना लो, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट वाला टेबल एक बार डिस्कस करेंगे। ये वैसे क्लियर तो है ना, ये पूरा पूरा मैकेनिज्म सभी को? यस सर। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है ना जिसको ये पूरा मैकेनिज्म क्लियर नहीं है? नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, No, sir. बिकॉज़ दिस इज द होल व्हाट योर सेंट्रल टॉपिक ऑफ दिस होल यूनिट। अगर आपको ये समझ आ गया तो सबको समझ आ गया, अगर ये नहीं आया तो समझ लीजिए इस टॉपिक में आपको कुछ नहीं पता है फिर। डन? यस सर। चलिए Yes, ओके sir. देन। अगर आप लोगों ने कर दिया है तो फिर आप लोग अपने नेक्स्ट वाले अपने टेबल को नोट डाउन कर लीजिए। जिस दिस टेबल, ये सिंपली आपको बता रहा है कि जितने हमारे क्राई प्रोटीन्स हैं इनके अगेंस्ट भी धीरे धीरे अब रेजिस्टेंस डेवलप होनी शुरू हो गई है, ठीक है। तो कौन कौन से वो आपके इंसेक्ट की स्ट्रेन्स है जिन्होंने इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। डन? यस सर। ओके, तो इसको समझ लेते हैं हम लोग फटाफट से। देखो, है कि हमने सारा प्रोसेस डेवलप कर लिया, सारी चीजें हमने कर ली, बट नाउ द थिंग इज कि क्या, जैसे हमने पहले केमिकल पेस्टिसाइड के केसेस में देखा था, मैंने डीडीटी का आपके साथ एक एग्जांपल शेयर किया था। तो डीडीटी हम लोग स्प्रे करते थे मॉस्किटो के अगेंस्ट, मॉस्किटो को किल करने के लिए, और धीरे धीरे हमने देखा कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो पॉपुलेशन वाज बिकमिंग रेजिस्टेंट टू दैट,
और आज की डेट में जितने भी ज्यादातर मॉस्किटो स्पीशी हम लोग देख रहे हैं अपने एनवायरमेंट में, उसके ऊपर डीडीटी का कोई भी इफेक्ट अब देखने को नहीं मिलता है। सो व्हाट हैज बीन डन इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ये जैसे जैसे मॉस्किटो इवॉल्व होते गए, जैसे जैसे हम इनके ऊपर ये अलग अलग टाइप के पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करते गए, केमिकल पेस्टिसाइड्स को, तो इनमें से कुछ या तो इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स थी या इनका मेटाबॉलिज्म किसी और तरीके से था, इन्होंने अपने जीन के अंदर कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म को स्विच कर दिया है कि अल्टीमेटली अब ये जो केमिकल्स थे, ये जो टॉक्सिन्स थे, इनका इफेक्ट इन पर्टिकुलर ऑर्गेन्स के ऊपर नहीं होने लगा। तो हुआ क्या, अगर उस पूरी पॉपुलेशन लेट से कुछ 100 ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर आप एक टॉक्सिन को स्प्रे करते हो और उसमें से 2 और 3 इंडिविजुअल ऐसे बच गए जिनके ऊपर उस टॉक्सिन का कोई इफेक्ट नहीं था, तो वो धीरे धीरे आगे चल के ऐसी पूरी पॉपुलेशन क्रिएट कर देंगे जो कम्प्लीटली उस टॉक्सिन के रेजिस्टेंट होगी, यानी उनके ऊपर या तो इफेक्ट होगा तो बहुत मिनिमम होगा या फिर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। सो सेम इट वाज ऑब्जर्व्ड विद दिस पर्टिकुलर बायोपेस्टिसाइड आल्सो। ये जो हमने बैसिलस thuringiensis से एक अपनी जीन निकाली, क्राई जीन, और इससे फिर हमने प्रोटीन बनाया, क्राई प्रोटीन। इस प्रोटीन को फिर हमने बहुत सारे अपने पेस्ट के अगेंस्ट जब यूज करना शुरू किया तो हमने देखा कि कुछ पेस्ट स्पीशी थी जिन पेस्ट स्पीशी के ऊपर इस पर्टिकुलर आपके क्राई प्रोटीन्स का इफेक्ट हो ही नहीं रहा था। तो हमने किया क्या, बेसिकली हमने बैसिलस thuringiensis की फॉर्मुलेशन देखी और इसका हमने देखा कि जब हमने इसको किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट, जैसे कि आपकी डायमंड बैक मॉथ है, एक मॉथ की स्पीशी होती है ये, जिसके ऊपर एक डायमंड जैसी एक शेप होती है, इसलिए इसको बोला जाता है डायमंड बैक मॉथ। तो जब हमने इसको कई स्पीशी तक, कई सॉरी जनरेशंस तक हमने इसको इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्ट्रेन से ट्रीट कराया, पहले फर्स्ट जनरेशन को ट्रीट कराया, उसके ऊपर टॉक्सिन का इफेक्ट हुआ, सेकंड जनरेशन को ट्रीट कराया, उसके ऊपर भी टॉक्सिन का इफेक्ट हुआ। इस तरीके से जब हमने इसको कंटिन्यूसली 12 20 25 जनरेशन तक हम जब ट्रीट करते रहे, तो हमने देखा कि आफ्टर 36 जनरेशन के बाद जब हमने इस के जो प्रोजेनी थी उसके ऊपर अगर हमने बीटी टॉक्सिन को ट्रीट कराया इससे, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला। इसका मतलब हुआ क्या, 36 जनरेशन के बाद में जो डायमंड बैक मॉथ था, इसके ये कम्प्लीटली रेजिस्टेंट हो गई, यानी कि इसने ये कई लेवल्स पे अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया है कि अब इस पर्टिकुलर बैसिलस thuringiensis का जो क्राई प्रोटीन है, इसका कोई भी इफेक्ट अब इन इंसेक्ट्स के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से लेबोरेटरी स्केल पे जब हमने करके देखा, क्राई प्रोटीन को हमने इन सभी, ये जितनी भी आप ये स्पीशी देख रहे हो, इन सभी को जब हमने ट्रीट कराया, तो धीरे धीरे किसी के अंदर 6 जनरेशन के बाद, किसी के अंदर 12 जनरेशन के बाद, किसी के अंदर 30 जनरेशन के बाद, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे करके इफेक्ट कम होता गया और एट लास्ट एक स्टेज ऐसी है जिसके बाद में अब कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, तो सबसे मेन जो हमारी इसकी क्लास थी जिसके अगेंस्ट हम इस सारा काम करते हैं, तो वो शुरू से कौन सी वाली क्लास रही है, दैट इज योर लेपिडोप्टेरा। तो लेपिडोप्टेरा के ये सारे सारे मेंबर्स हैं जिनके अगेंस्ट धीरे धीरे लैब के अंदर हमने देखा कि किसी के 35 36 जनरेशन तक जाते जाते वो कम्प्लीटली इनइफेक्टिव हो जाता है, यानी कि इसकी जो काम करने की एफिशिएंसी है कम हो जा रही है। सेम इज फॉर योर कोलियोप्टेरा। ये जो कोलियोप्टेरा है इसके अंदर भी हमने सेम देखा कि जो इसकी स्पीशीज हैं उनके अंदर भी धीरे धीरे इफेक्ट कम होता जा रहा है। दूसरा जो ऑर्डर था दैट वाज डायप्टेरा। डायप्टेरा के भी आपको यहाँ पर एग्जांपल्स दिए गए। सो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर से पहले वाली स्लाइड, जस्ट होल्ड ऑन फॉर ए सेकेंड। ये वापस से मैकेनिज्म वाली स्लाइड विजिबल है सभी को? यस सही सर। है, सुनो। तो हुआ क्या, जैसे ही बैक्टीरियल टॉक्सिन के ऊपर डाला गया, तो अल्टीमेटली हमने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो हमें पता चला, क्या पता चला कि या तो ये टॉक्सिन जब गट के अंदर जाता है, गट के अंदर जाने के बाद आपको याद है कि एंड टर्मिनल से सी टर्मिनल, ये आपके प्रोटीन कुछ इस तरीके से शेप में होता है जिसमें यहाँ पर क्लीवेज होनी थी। क्लीवेज किसकी वजह से हो रही थी, क्योंकि जो मिड गट का पीएच है, पीएच रहता है लगभग 12 के आसपास। तो इस पीएच के ऊपर एक पर्टिकुलर इसके स्टमक की एंजाइम थी, ठीक है, वो एंजाइम आकर के इस प्रोटीन को काट कर देती थी। ठीक है, उसका नाम था ट्रिप्सिन। क्या नाम था उसका, उस प्रोटीन का नाम क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन आपने पहले भी सुना होगा कई जगह। ये एक हमारा सिंपल डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी काम करता है, इंसेक्ट्स की इनकी इंटेस्टाइन के अंदर भी काम करता है। तो अल्टीमेटली ट्रिप्सिन आकर के इस प्रोटीन को दो पर्टिकुलर साइट्स पे जहाँ क्लीव करता था, तो अब इसने अपने ट्रिप्सिन को इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया है कि ट्रिप्सिन अब इस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करता है और इसकी इन पर्टिकुलर साइट्स पे कट नहीं लगाता है। यानी कि अगर ये कट नहीं लगाएगा तो ये टॉक्सिन कैसा था, पहले इनएक्टिव स्टेट के अंदर था, इसका एक्टिवेशन नहीं होता था। तो ये जो जब ये एक्टिवेट ही नहीं होगा तो क्या ये यहाँ पर क्लीव करेगा, बताओ मुझे। अगर ये प्रोटीन, ये एंजाइम अगर एक्टिव ही नहीं हुआ तो क्या ये अपना यहाँ फंक्शन करेगा, नहीं, ये फंक्शन नहीं करेगा। तो पहला जो हमारे पास प्रोबेबल केस था कि इसने है जो कि इस पीएच पे जाने के बावजूद भी इस प्रोटीन को आइडेंटिफाई करके इसको मॉडिफाई नहीं करता, यानी कि इसका एक्टिवेशन नहीं करता। जब एक्टिवेशन नहीं होगा तो ना ही ये आपकी जो इंसेक्ट की
मिडगट की सेल्स थी ना उनको इन्फेक्ट करेगा, जब इन्फेक्ट नहीं करेगा तो आगे ना सेप्टिसीमिया होगा ना उसकी मिडगट के ऊपर कोई और फर्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अल्टीमेटली इसने अपने आप को ऐसे मॉडिफाई कर लिया है कि अब उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा जो दूसरी चीज हमें देखने को मिली, ये प्रोटीन जैसे ही इसकी बॉडी में जाएगा तो ना सिर्फ इसका जो मैकेनिज्म है वो ना एन टू सी टर्मिनल में जहां पर दो जगह कट लगना था, यानी कि जहां से सी सेक्शन का ट्रंकेशन होना था, वो साइड तो क्लीव नहीं हो रही, बल्कि इस ये जो एक्टिव टॉक्सिन वाली साइड थी, ये एन टर्मिनल वाला जो पूरा डोमेन था, इस डोमेन को क्लीव डाउन कर दिया जाए। तो अगर भले ही ये एक्टिवेशन भी होता है, बट ये जो एन डोमेन है अगर हमने इसी को कट कर दिया तो अल्टीमेटली कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो एक्टिव वाला डोमेन था ये काम नहीं करेगा और अल्टीमेटली इन सेल्स के ऊपर यहाँ पर जो पोर्स बन रहे थे वो पोर्स नहीं बन रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये सेकंड स्टेप था जिसकी वजह से हमने वहां पर रेजिस्टेंस होती हुई देखी है। क्या इतनी बात समझ आई? Yes, तीसरा sir. जो स्टेप है वो तीसरा स्टेप ये है कि ये जो पर्टिकुलर इसका सिग्नल मैकेनिज्म है, ये जो कैडहेरिन नाम के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर आकर के टॉक्सिन सिस्टम आपका बाइंड करता है, इन कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर हमने यहाँ पर इस तरीके के चेंजेस करा दिए सरफेस पे कि अब ये कैडहेरिन मॉलिक्यूल इस पर्टिकुलर जो 7 TM वाला रीजन था ना, 7 हेलिक्स वाला, आपका ये पर्टिकुलर जो हेलिक्स वाला ये वाला रीजन है, अब ये हेलिक्स प्रोटीन उसके साथ में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा? क्योंकि हमने इसकी ये जो कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स थी इसकी स्पेसिफिसिटी यहाँ से चेंज कर दी है। ठीक है, जैसे इसकी स्पेसिफिसिटी चेंज हुई अब ये मॉलिक्यूल आकर के यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये बाइंड नहीं कर पाएगा तो ना ही ये पोर्स क्रिएट कर पाएगा, ना ही कोई और टाइप का फंक्शन होगा। तो अल्टीमेटली ये 3 टाइप के हमने अभी तक मैकेनिज्म देखे हैं जिसकी वजह से जो ये बीटी टॉक्सिन है इसके अगेंस्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंस जनरेट कर पा रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई? आई होप इतनी बात क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, अगर इतनी बात आपको क्लियर है तो हम एक काम करते हैं, फटाफट से अब आपका एक क्विज ले लेते हैं। सो काइंडली बी रेडी फॉर योर क्विज। अपने सभी लोग चैट स्क्रीन को ऑन कर लीजिए, जो आपके चैट बॉक्सेस है उनको ऑन कर लीजिए। अच्छा, हिमांशु ने लिखा था सर वॉइस बहुत लो आ रही है आपकी। हिमांशु, इज इट ओके नाउ? क्या अब वॉइस क्लियर है? Yes, yes, sir. चलो ठीक है, तो बी रेडी फॉर योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि जो आपका बीटी टॉक्सिन है या जो आपका क्राई प्रोटीन है, ये किस पर्टिकुलर ऑर्डर के या किस पर्टिकुलर क्लास के अगेंस्ट काम करता है? आपने अभी 2 क्लासेस 2 ऑर्डर्स देखे हैं, उनके नाम मैं पूछ रहा हूँ आपसे, उनमें से किसके अगेंस्ट ये काम करता है? ठीक है, 3-4 आंसर आने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं आप सभी के। गुड। याद रखिएगा आपकी अटेंडेंस और आपकी प्रेजेंस ये मार्क होती है इन टेस्ट के बेसिस पे। गुड। आयुषी चौधरी का एक अलग आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेम इज विद अनिका, अनिका ने भी एक अलग और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। सेम ईशा राणा के दोनों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। गुड गुड। नितिन, हिमांशु, गुड गोइंग। चलिए मूविंग अहेड, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज, आपने अभी देखा कि जो आपका बीटी टॉक्सिन है ये कई अलग अलग टाइप के स्ट्रेन से प्रोड्यूस हो रहा था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने आपको बताया स्पेसिफिक 2 इनकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। तो वो दोनों कितने कितने वेट के आपके प्रोटीन्स हैं? वेट का नंबर चाहिए मुझे, मॉलिक्यूलर वेट का। मैंने आपको बताया था ना कि एक ये रेंज है प्रोटीन्स की, एक दूसरी ये वाली रेंज है, तो वो नंबर चाहिए मुझे। गुड, वेरी गुड अनिका, बिल्कुल करेक्ट है। वंशिका, अनीशा, नितिन, आदेश, मिसबा, मिसबा ये 2 नहीं है, इट इज आइदर इन द रेंज ऑफ 70 और इन द रेंज ऑफ 130। ये 70 से 130 नहीं होता है, या तो 70 किलो डाल्टन वाली रेंज है या 130। ठीक है, चलिए गुड, ज्यादातर आप लोग बिल्कुल सही इसका आंसर दे रहे हो।
तो अच्छा, आपने बता दिया मुझे कि या तो ये 70 किलो डाल्टन का प्रोटीन होगा या 130 किलो डाल्टन का प्रोटीन होगा। तो आपको पता है प्रोटीन है तो इसके एक एन टर्मिनल होगा, एक सी टर्मिनल होगा। ये बायोकेमिस्ट्री में आपने सभी ने पढ़ा ही होगा कि हर एक अमीनो एसिड या कोई भी आपका प्रोटीन है तो उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक एन टर्मिनल, एक सी टर्मिनल। इसमें किसी एक पर्टिकुलर साइड पे क्लीवेज होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर साइड से उसको काटा जाता है। जब उसको काट देते हैं तो उसके बाद में एक एक्टिव सेक्शन बचता है जो एक्चुअल में काम करेगा। तो वो कौन सा है, एन टर्मिनल है या सी टर्मिनल है? मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा वाला एक्टिव टॉक्सिन बनता है, एन टर्मिनल या सी टर्मिनल? आंसर्स मिल रहे हैं मुझे, काफी सारे आंसर्स मिल रहे हैं। बट आई एम सरप्राइज टू सी कि सभी के सभी आंसर्स गलत हैं। आदेश, ईशा, आकांक्षा, वंशिका, रिया, मिसबा, रिया, तोमर, अनिका, अनीशा, शिल्पी, नितिन चौहान एंड आंचल गुप्ता। चलो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। आई होप दिस स्लाइड इज विजिबल टू यू ऑल। Yes, sir. ठीक है, Yes, अगर आपको sir. स्लाइड विजिबल है, मैंने आपको अभी बताया था कि ये एन टर्मिनल से लेकर के ये सी टर्मिनल तक का प्रोटीन होता है जिसमें दो जगह पर क्लीवेज लगती है। और मैंने अभी आपको यहाँ पर हाईलाइट भी करके बताया था कि ये पर्टिकुलर सेक्शन है एन टर्मिनल डोमेन का, वो सेक्शन होता है जो एक्टिव टॉक्सिन बनता है। मैंने आपको ऐसे हाईलाइट भी करके बताया था, ये एन टर्मिनल वाला डोमेन है जो एक्टिव होता है। ये सी टर्मिनल का तो रेस्ट बचा हुआ एक्स्ट्रा वाला पार्ट था। ठीक है, ये सी टर्मिनल था जिसके अंदर आपके ये वाला और ये वाला पार्ट आता है जो कि एक्चुअल में मेन काम नहीं करते। मेन काम कौन सा करता है, ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन वाला। ठीक है, ये पढ़ते हैं ना आप, ये 7 अल्फा हेलिक्स है विच हेल्प्स इन मेम्ब्रेन इंसर्शन। मेम्ब्रेन को मेन जो भेदने का काम करते हैं, यानी कि जो एक्टिव टॉक्सिन है वो कौन सा है, ये 7 अल्फा हेलिक्स वाला, ये पर्टिकुलर सेगमेंट है। ठीक है, और ये जो आपके बचे हुए पार्ट है ये सी डोमेन के ट्रंकेशन के साथ में रिमूव हो जाते हैं। एक क्लीव होता है यहाँ पर, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ अलग कलर से। एक क्लीवेज होगी यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन पे, दूसरी क्लीवेज होती है यहाँ। तो हुआ क्या, एक तो आपके पास में अल्फा हेलिक्स वाला सेक्शन बचता है, दूसरा इस तरीके से बीटा शीट्स वाला ये वाला सेक्शन बचता है, और तीसरा आपके पास ये वाला सेक्शन बचेगा। ठीक है, तो ना तो ये सेक्शन किसी काम का है ना ही ये सेक्शन किसी काम का है, बट अल्टीमेट जो हमारे काम का है वो है ये वाला आपका सेक्शन। ठीक है, विच इज ऑफ एन टर्मिनल। इतनी बात याद रहेगी? तो आई एम सॉरी टू से, बट सभी के वाले जो आंसर था वो गलत था, तो इसको याद रखेंगे अब आप लोग आगे से। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब आपके नेक्स्ट वाले टेबल की तरफ। नेक्स्ट जो अब आपको टेबल नोट करनी है वो ये है, इसको बस आप देख लो थोड़ा सा। ये सिर्फ आपको बताता है कि जब हम इसकी ट्रांसजेनिक हम प्लांट क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की तो हमने आपकी जो जीन थी जिससे हमें बीटी आपका स्ट्रेन मिला, तो ये जो क्राइजीन है, इस क्राइजीन को हमने प्लांट के अंदर डाला। प्लांट के अंदर किस तरीके से डाला, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ ब्लैंक स्लाइड पर। विजिबल है सभी को? Yes, sir. Yes. Yes, तो sir. ध्यान दो, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, ये बैक्टीरियम लिया, इस बैक्टीरियम के अंदर इसका न्यूक्लियोइड होगा। ठीक है, इस न्यूक्लियोइड रीजन में से आपने इसका डीएनए निकाल लिया। पता है ना, क्लोज सर्कुलर डीएनए होता है इसका। इस डीएनए में से मान लीजिए आपको पता चला कि आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन है। अच्छा, कलर नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। मान लीजिए इसका ये पर्टिकुलर सेक्शन है जिसके अंदर जीन है। अब ये जीन कौन सी है, क्या कोई बता पाएगा कौन सी जीन होगी ये है क्राइजीन। Right. ठीक है, स्मॉल सी बनता है यहाँ पे, जब हम जीन्स की बात करते हैं तो हमेशा स्मॉल से लिखा जाता है। अब ये जो क्राइजीन है, जब इस क्राइजीन का एक्सप्रेशन होता है तो इससे बनता है एमआरएनए। क्या बनेगा, एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है जब ये इस आगे ट्रांसलेट होगा तो इससे बनेगा प्रोटीन। ये राइबोसोम के पास जाएगा, राइबोसोम इसको रीड करके उसके अकॉर्डिंगली जो भी यहाँ पर ट्रिपलेट कोडॉन्स होंगे उन कोडॉन्स के अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड ऐड करेगा, और वो अल्टीमेटली फॉर्म होते होते एक प्रोटीन बनेगा। तो इससे जो पर्टिकुलर आपका प्रोटीन बना,
इस प्रोटीन का नाम है क्राई प्रोटीन, इसको आप कैपिटल में लिखोगे। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी आपकी कहानी थी। इस क्राई प्रोटीन को आपने लिया और स्प्रे करा दिया, कहां पर? प्लांट के ऊपर। ये आपका प्लांट है। जैसे आपने इसके ऊपर स्प्रे कराया तो अब कोई भी इंसेक्ट आया तो इंसेक्ट आएगा इसके ऊपर फीड करेगा तो वो किल हो जाएगा, तो यानी कि प्लांट आपका बच गया। ठीक है, बट ऐसा काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? आपको ये जो क्राई प्रोटीन है ये बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपको चाहिए। कैसे चाहिए? बहुत बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में आपको चाहिए। इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर आपको क्राई प्रोटीन चाहिए तो सोचो आपको ये जो बेसिलस थ्योरीजेनेसिस है ये कितनी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ये भी बहुत 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 ज्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर चाहिए। तो अब हम ऐसा काम कर नहीं पा रहे थे तो हमने क्या करना शुरू कर दिया अल्टीमेटली। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। हमने काम क्या किया, हम वापस इसी ऑर्गेनिज्म पे गए। ठीक है, हमने इसका जेनेटिक मटेरियल निकाला। ये जो क्राइजीन थी हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन को निकाल लिया। अब ये क्राइजीन वाली सीक्वेंस मेरे पास यहाँ आ गई। हमने इसको एक दूसरा बैक्टीरियम लिया जिसको बैक्टीरियम का नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्या नाम है उसका? पढ़ पा रहे हो स्पेलिंग? मैं माउस से ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ। दिस इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। क्या आप जानते हो इस बैक्टीरिया के बारे में? नो सर। पहली बार नाम सुन रहे हो इसका? आरडीटी आप क्या सब्जेक्ट है इस बार, है पहले आ चुका है? पहले था सर। सर। टेक्नोलॉजी। क्या कह रहे हैं? पहले था सर, लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर था तो उसमें एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो हम इसको पढ़ा देंगे फिर किसी दिन आपको जब हमारे पास टाइम होगा। बस अभी के लिए आप इतनी बात जान लो कि जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस है इसको हम नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल प्लांट जेनेटिक इंजीनियर। क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरियम है इस बैक्टीरियम के अंदर एक तो इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, इसके अलावा इसके पास एक प्लाज्मिड होता है। ठीक है, वो प्लाज्मिड जिसका नाम होता है टी आई प्लाज्मिड। क्या नाम है इसका? टी आई प्लाज्मिड। क्यों कहते हैं इसको टी आई प्लाज्मिड? क्योंकि नेचुरली अगर ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस नाम का बैक्टीरिया है और इसके पास ये जो इसका टी आई प्लाज्मिड है तो ये टी आई प्लाज्मिड की हेल्प से किसी भी प्लांट के अगर किसी भी सेक्शन में कहीं पर कोई वुंड है, अगर सपोज ये प्लांट है इसमें कहीं पर एक छोटा सा इसको चोट लग गई, कहीं पर कुछ इसका हिस्सा टूट गया तो वहां से ये कुछ केमिकल सिक्रीट करता है। ठीक है, उन केमिकल्स की वजह से ये पर्टिकुलर जो बैक्टीरियम है इसका ये टीआई प्लाज्मिड एक्टिवेट हो जाता है और ये वहां पर जाकर के अपनी कॉलोनीज को अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। इससे 2 बैक्टीरिया 4 बैक्टीरिया 8 बैक्टीरिया इस तरीके से ग्रो करते चले जाएंगे। अल्टीमेटली इसकी बहुत बड़ी कॉलोनी बन जाएगी। ठीक है, ये तो सब होता ही होता है बट साथ में जो टीआई प्लाज्मिड है इसकी वजह से वहां पर उस प्लांट के अंदर उसके जो पार्ट है उसका एक गॉल बन जाता है, एक ऐसा टिश्यू मास बन जाता है जैसे ह्यूमंस के अंदर ट्यूमर बन जाता है ना, इसी तरीके का वहां पर एक बड़ा मास बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, इस डिजीज को हम कहते हैं क्राउन गॉल डिजीज। क्या कहते हैं? क्राउन गॉल डिजीज। क्यों कहते हैं इसको क्राउन गॉल? क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा क्राउन जैसा लगता है, जैसे क्राउन होता है ना किसी प्रिंस का किसी किंग का, तो उस क्राउन जैसी अपीयरेंस आती है। और दूसरा एक टिश्यू का मास बन जाता है, इसको हम कहते हैं गॉल। ठीक है, तो वहां पर ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। तो साइंटिस्ट ने इसको पकड़ करके इसके बारे में जब इंफॉर्मेशन लेनी स्टार्ट कर दी तो हमें बाद में क्या पता चला, हमने इसका जो टीआई प्लाज्मिड था हमने वो टीआई प्लाज्मिड लिया खाली। ठीक है, और टीआई प्लाज्मिड लेकर के जब हमने इसके सेक्शन देखे तो हमें पता चला कि इसका तो एक ही सेक्शन ऐसा है जो कि ये डिजीज कॉज करता है। इस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम इन्होंने रख दिया टी रीजन। क्या नाम रख दिया इसका? टी रीजन या फिर टी सेगमेंट। ठीक है, या फिर टी डीएनए भी आप इसको कह सकते हो, जो इसका सबसे अच्छा नाम है जिससे कॉमनली हम इसको जानते हैं दैट इज इट्स टी डीएनए। टी डीएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर डीएनए का सेगमेंट ऐसा है जो ट्रांसफर होता है, इसलिए इसका नाम रखा है टी डीएनए। कहती बात याद रहेगी। अब हमने देखा कि जो टी डीएनए है इसके अंदर सारी वो जीन्स थी जिसकी वजह से डिजीज होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या काम किया? साइंटिस्ट ने सिंपली इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर से इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड के अंदर से सारा रीजन छोड़ दिया, बस ये जो डिजीज करने वाला रीजन था इसको वहां पर रहने दिया। ठीक है, एक चीज और मैं बताना भूल गया, इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के पास में एक और सेगमेंट होता है जिसका नाम होता है विर रीजन। इस पर्टिकुलर सेगमेंट का नाम है विर रीजन, VIR।
ये VIR का मतलब है विरुलेंस, यानी कि वो सारी की सारी एक्टिविटी जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर पार्ट, ये पर्टिकुलर डीएनए इस वाले पार्ट को ट्रांसफर कर सकता है, यानी इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्शन करा करके जो यहाँ वाला जो डीएनए सेगमेंट था इसको प्लांट के अंदर ट्रांसफर करा सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्या विरीजन पता चल गया? Yes, sir. Yes. विरीजन के पास कौन सा सेगमेंट है जो खुद तो नहीं जाएगा लेकिन टीडीएनए को ट्रांसफर करा देगा, ये है आपका विरीजन। और दूसरा था आपका टीडीएनए, टीडीएनए के पास में कौन सा वाला सेक्शन था जो कि ट्रांसफर होगा, जो इंसर्ट हो जाएगा, किसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा? प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये जो विरीजन था ये हमारे काम का नहीं था, काम का नहीं था, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस पार्ट को काट के खत्म कर दिया। अब खत्म कर दिया तो हमने क्या किया, हमने यहां से क्राई प्रोटीन उठाया, सॉरी नॉट क्राई प्रोटीन, हमने यहाँ से क्राइजीन उठाई और उस क्राइजीन को लेकर के हमने इस पर्टिकुलर पार्ट पे स्टिक कर दिया। क्या किया हमने, इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने यहाँ पर स्टिक कर दिया। तो अब ये वाला रीजन कौन सा बन गया, ये वाला बन गया क्राइजीन वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट है विरजीन वाला सेगमेंट, और इसको, इस पूरे प्लाज्मिड को उठा करके हमने डाल दिया वापस से एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस में। ये इसका न्यूक्लियोइड वाला पार्ट है और ये हो गया इसका प्लाज्मिड। ठीक है, कौन सा प्लाज्मिड, जिसका नाम था, क्या नाम था इस प्लाज्मिड का? TI plasmid. TI प्लाज्मिड, यानी ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। बट अभी ये ट्यूमर इंड्यूसिंग नाम तो है इसका, बट क्या अभी ट्यूमर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ट्यूमर करने वाली जीन्स कहाँ थी, इस रीजन के अंदर, और अब इसकी जगह कौन सी वाली जीन्स है, क्राइजीन्स है। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, अब साइंटिस्ट ने सिंपली जब ये वाला आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बनाया तो इसको एक प्लांट के पास ले गए, कुछ भी नहीं किया, प्लांट के यहाँ पर बड़े आराम से कट लगाया, कट लगाते ही प्लांट ने अपने जो डिफेंस वाले केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सिक्रीट कर दिए। उनमें उनमें से एक केमिकल का नाम है एसिटोसिरिंजॉन। क्या नाम है उसका? एसिटोसिरिंजॉन। अगर याद रखना चाहो आगे के लिए तो रख लो, आपके एंट्रेंसेस में बहुत काम आएगा ये। एसिटोसिरिंजॉन यहाँ पर सिक्रीट किया, एसिटोसिरिंजॉन जैसे ही सिक्रीट किया, साइंटिस्ट ले गए इस वाले बैक्टीरियम को, यहाँ पर मैंने बताया था ये जो केमिकल है इस बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर देता है। कैसे एक्टिवेट कर देता है कि इसकी जो विड जीन्स थी, जो यहाँ वाली जो जीन्स थी, वो एक्टिव हो जाएंगी और इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ट्रांसफर करा देते हैं बैक्टीरियम के अंदर। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, इन पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अब जितनी भी सेल्स थी वो वहां पर डिजीज कॉज हुआ है, बट डिजीज के अंदर क्राउन या टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बल्कि उसके अंदर अब प्लांट के अंदर कौन सी जीन चली गई है, कौन सी जीन चली गई प्लांट की सेल्स के अंदर? क्राइजीन। जब ये जीन चली गई और प्लांट के अंदर इंटीग्रेट हो गई तो अब प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा प्लांट? प्लांट प्रोड्यूस करेगा क्राई प्रोटीन। प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, प्लांट अपनी सेल के इन सेल्स के अंदर जिनके अंदर इन्फेक्शन हुआ वहां प्रोड्यूस करेगा क्राई प्रोटीन। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे ही देखा कि ठीक है अब यहाँ पर क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, साइंटिस्ट आए और उन्होंने, एक सेकेंड, साइंटिस्ट ने अब ये जो इतना सेक्शन था इस प्लांट का इसको कट कर लिया। ठीक है, क्या किया, इतने पार्ट को यहाँ से कट कर लिया, कट करके इसको वापस से लैब में ले गए और इसका किया, क्या किया, माइक्रो प्रोपोगेशन। पता है माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? पता है आप लोगों को माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है? No, sir. हिमांशु तो उमर को पता होगा। यस सर। हिमांशु, क्या होता है माइक्रो प्रोपोगेशन? सर मतलब एक तरह से अपने नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। प्लांट टिश्यू कल्चर पता है आपको क्या होता है? किसी भी चीज को Yes, sir. क्या होता है Yes, प्लांट sir. टिश्यू क्या कल्चर? सर? उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट के एक छोटे से हिस्से को ले जाते हैं, ठीक है, लेट्स से लीफ है, इस लीफ का भी आपने एक्स सिर्फ प्लांट टिप को वाला लेके काट उनको काट लिया, ठीक है, हाँ, एक्स प्लांट को लिया, उसको आपने स्टेरलाइज किया, स्टेरलाइज करने के बाद में आपने इसको सूटेबल मीडिया के ऊपर प्लांट कर दिया। अब इसी से रूटिंग हो जाएगी और इसी से शूटिंग हो जाएगी और एक कंप्लीट प्लांट बन जाएगा। माइक्रो प्रोपगेशन भी यही टेक्निक है। माइक्रो प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं, एक ही प्लांट पार्ट से पहले ऐसे प्लांट बनाए, फिर इसकी और सब सेक्शनिंग कर दी, इससे और बहुत सारे प्लांट बनाए, देखते देखते आप देखोगे कि इसी छोटे से सेक्शन से हमने मोर देन 1000 प्लांट्स जनरेट कर दिए। ठीक है, अब याद करो ये वाला सेक्शन कौन सा था, ये सेक्शन वो था जिसके अंदर प्लांट अपने आप क्या बना रहा था, क्रायो प्रोटीन, और इसी सेक्शन को आपने काट दिया। इस पर्टिकुलर सेक्शन को आपने काटा, काटने के बाद में आपने इसको लैब में ले जाकर के इसका माइक्रो प्रोपगेशन कराया, उससे आपने बना दिए
कितने प्लांट्स? 1000 प्लांट, और उसमें से फिर से एक प्लांट लिया, फिर उससे 1000 बनाए, तो इसका मतलब आपने पूरी पॉपुलेशन प्लांट्स की जनरेट कर दी। लेट्स से आपने 100,000 प्लांट्स ऐसे बना दिए। अब आप इसको फार्मर्स को दे दो, फार्मर्स को ले आकर के कहो कि अब आप इनको प्लांट्स को फील्ड में जाकर के ग्रो करा दीजिए। तो ये जो ट्रीज हैं, ये जो प्लांट्स हैं, ये अब वहां जाकर के ग्रो करेंगे। तो होगा क्या अल्टीमेटली? इंसेक्ट जाएगा, इंसेक्ट इसके ऊपर बैठेगा, इसको ईट करना शुरू करेगा। तो क्या इंसेक्ट ईट कर पाएगा? नो सर। क्यों नो नहीं कर सर, पाएगा? क्राइजीन मर जाएगा। इंसल्ट हो चुका है। हाँ, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी, क्योंकि ये इस सेक्शन से बने हैं जिसके हर सेल के अंदर क्राई प्रोटीन था। तो इस प्लांट का अगर मैं इस वाले पार्ट को लेता, जो पेरेंट प्लांट था जिसको मैंने इन्फेक्ट कराया, अगर मैं इस प्लांट को इस साइड को लेता, तो क्या इससे माइक्रो प्रोपोगेट करके बनाए हुए प्लांट्स के अंदर यहाँ पर क्राई प्रोटीन बना हुआ होता? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो क्राई No, प्रोटीन sir. है ही नहीं। क्राई जीन सिर्फ कहाँ है? इस सेक्शन में, जहाँ वुंड होकर के हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशंस का इन्फेक्शन कराया, उस पर्टिकुलर साइड से आपने ऐसे प्लांट लिए, सॉरी उस पर्टिकुलर प्लांट के उस सेक्शन से आपने वो वाला सेक्शन लिया, जिससे आपने पूरा माइक्रो प्रोपोगेशन कराया। माइक्रो प्रोपोगेशन कराने के बाद में पूरी इनकी जो बड़ी पॉपुलेशन थी उसको आपने ग्रो करा दिया। या फिर क्या कर सकते हो, फील्ड में आपने 1000 प्लांट्स बनाए, इनसे आप सीड्स प्रोड्यूस करा दो, ठीक है, और वो सीड्स आप फार्मर को दे दो। तो अल्टीमेटली इसके जीनोम के अंदर क्राइजीन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो जैसे ही ये जीनोम के अंदर क्राइजीन प्रेजेंट थी, तो वहां पर क्या होगा? अल्टीमेटली पूरी की पूरी ये जो प्लांट्स हैं, ये पूरे फ्रॉम रूट्स टिल शूट्स टिल एपेक्स, है ना, यानी अगर बात करूं आपके प्लांट की, तो इस ऊपर की टिप से लेकर के नीचे रूट की टिप तक पूरे सभी जितनी भी सेल्स हैं, सभी के अंदर एक क्राई प्रोटीन बनाने वाली जीन प्रेजेंट थी। और ये क्राई प्रोटीन बनाएगी, जिसकी वजह से जो भी इंसेक्ट आएगा इसके ऊपर फीड करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो किल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. बस ये आपका प्रोसेस था क्राइजीन को इंसर्ट कराने का। किस बैक्टीरिया का यूज किया आपने? उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम Agrobacterium tumefacium. हाँ, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। ठीक है, क्या है बैक्टीरियम का नाम? Agrobacterium ट्यूमिफेशियंस, tumefacium. ठीक है। यस सर। इसका जो Yes. प्लाज्मिड लिया, प्लाज्मिड का क्या नाम है? TI plasmid. हाँ, क्यों कहते हैं इसको टीआई प्लाज्मिड? ट्यूमर Induced. इंड्यूसिंग ट्यूमर Tumor इंड्यूसिंग induced प्लाज्मिड होता है, plasmid. ठीक है। इस ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का कौन सा वाला पार्ट होता है डीएन जो ट्रांसफर होना होता है? DNA. हाँ, डीएनए। टीडीएनए हाँ, कौन सा डीएनए है वो? TDNA. टीडीएनए। क्यों कहते हैं इसको TDNA? टीडीएनए? क्योंकि ये ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर कहाँ से होता है। ट्रांसफर होता है? प्लाज्मिड से जो प्लांट का जीनोम है उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. कहते हैं बात समझ में आई? अब इस एक्टोबैक्टीरियम की जो पूरी पूरी डिटेल है आप अपने आरडीटी वाले सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हो, बट अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं देखता हूँ एक दो क्लासेस के बाद अगर कभी हमें टाइम मिलेगा तो मैं इसकी पूरी पूरी पार्ट आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Okay, अभी sir. पढ़ाऊंगा तो हमारा जो ये वाला टॉपिक है ना, ये बीच में रह जाएगा। तो इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो अब आप ये अपना Yes, sir. जो नेक्स्ट टेबल है इसको फटाफट से ड्रॉ कर लो, लिख लीजिए अपने पास में, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। कितना टाइम बचा है अभी हमारे पास? 6 ओ, मिनट। खाली 5-6 मिनट बचे हैं, फटाफट से नोट डाउन करो। कल वाली हमारी क्लास है, उसमें हमें हर हालत में इस टॉपिक को, चैप्टर को खत्म करना है। अच्छा, एक चीज जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, हम लोग देखो कंप्यूटर के बेस पे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बट चीजें क्लियर हो रही है या नहीं? यस सर। मजा आ रहा है Yes, पढ़ने में, sir. या जबरदस्ती वाली पढ़ाई हो रही है? बाकी का नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ अपने कोर्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। बताओ, इस खामोशी को मैं क्या समझूं? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हाँ, पर उतनी कुछ कह अच्छी रहे हो, नहीं हो मैं रही सुन नहीं जितनी पाया। कॉलेज में होती थी। देखो वो तो Yes, चीजें sir. अभी थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी, बट जितना मैंने कोशिश की स्लाइड्स के थ्रू आपको, वैसे भी डायग्रामेटिकली, अब देखो मेरे हाथ में पेन नहीं है, माउस है, तो मैं उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं ड्रॉ कर सकता। तो वैसे अभी अगर देखो कोई सिचुएशन है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उस फेज में भी अभी जो पढ़ाई चल रही है उसके बारे में आपकी क्या फीडबैक है? अच्छा यस है, सर। ठीक ठाक है, या बस काम चला हुआ है, जबरदस्ती है?
सर अच्छा है। अच्छा है, मतलब काम चल जाएगा ना, आपका सिलेबस सफर नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, नोट्स आप लोग देख रहे हो क्लासरूम पे पहुंचे थे, उसको आज चेक कर लेना, मुझे कल वाली क्लास में बताना फिर कि आपने उनको पढ़ा या नहीं पढ़ा। और मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसका सेक्शन भी मैं स्कैन करा के आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, तो ओके सर। आपको बता दूं, ये जो आपका सिलेबस है बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, अगर हम ढंग से इसको लग जाए तो 2 या 3 महीने में हम इसको फिनिश कर देंगे। खाली 17 टॉपिक्स हैं, 17 टॉपिक्स बहुत बड़े नहीं होते। ठीक है, और ये बहुत अच्छे से आपको मार्क्स भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि ये वाला सिलेबस आपके 75 मार्क्स का है जिसका पेपर होगा आपका। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, तैयार कर लो। कोई भी डिफिकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग अभी व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो जाएंगे, आप कभी भी मुझसे वहां पर क्वेश्चन सेंड कर देना, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आई विल आंसर दैट। ठीक है, सर। नोट डाउन करते रहो इसको साथ में। सर हो गया। हो गया, चलो। यस सर। अब ये जो आपको टेबल बता रहा है, क्या बता रहा है, ये जो आपकी जीन थी, कौन सी जीन, क्राइजीन, जो अभी अभी आपने देखा कि हमने इसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशंस के थ्रू ट्रांसफर कराया। कहाँ ट्रांसफर कराया, होस्ट प्लांट के अंदर। किस होस्ट प्लांट के अंदर, जिसके ऊपर इंसेक्ट आता है। कौन सा इंसेक्ट आता है, जो उस प्लांट को फीड करता है और उसको, उसकी जो यील्ड है उसको फिनिश अप कर देता है। तो यानी कि वो पर्टिकुलर क्रॉप जिसको आप ग्रो कराना चाह रहे थे, उसके अंदर हमने इस क्राइजीन को ट्रांसफर कराया। तो हमने देखा कि पूरी जीन को ट्रांसफर कराने की जगह अगर हम कुछ हिस्सों को डालें या कुछ हिस्सों को छोड़ दें, तो ये जो इसकी इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है, क्राइजीन का जो इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ जाता है या ज्यादा घट जाता है। तो ये पर्टिकुलर आपको वो चीज एक्सप्लेन कर रहा है। अब एक सेकेंड, अगर आप देखो ये जो हमारी जीन है, तो फुल लेंथ नेटिव जीन विद प्लांट ट्रांसलेशनल कंटेंट, यानी कि जीन है, जीन के साथ में कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो सेक्शन जाकर के प्लांट की जीन से मैच होने चाहिए, तभी तो प्लांट की जीन के अंदर ही जाकर के इंसर्ट कर पाएगा। वो आरडीएनए के अंदर पढ़ा होगा ना आपने कि कुछ स्टिकी एंड्स होने चाहिए, कुछ ऐसे एंड्स होने चाहिए जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो, तभी तो जीन वहां जाकर के इंसर्ट हो पाएगी। याद है यस सर। आरडीटी में। सर। तो अगर ये वाला सेक्शन जाकर के प्लांट के जीनोम, सपोज ये वाला जो लंबे वाला है आपका प्लांट का जीनोम है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के साथ में यहाँ पर और यहाँ पर ये मैच करते हैं, ठीक है, और ये वाली आपकी क्राइजीन है, तो ये सेक्शन यहाँ से और ये सेक्शन यहाँ से, ये क्या होगा, यहाँ पर क्रॉसओवर हो जाएगा। ठीक है, और क्रॉसओवर होते ही ये पर्टिकुलर पार्ट तो रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पर ये क्राइजीन वाला पार्ट आ जाएगा। कहती बात क्लियर हुई। यस सर। तो अगर ऐसा काम है जिसमें कि हमने पूरी की पूरी जीन ली है, यानी कि फुल लेंथ नेटिव जीन ली है, ये लिखा है ना पर फुल लेंथ वाली आपकी नेटिव जीन है, और साथ में प्लांट के ट्रांसलेशनल कंटेंट है, यानी कि जो ट्रांसलेट होता है एमआरएनए बनाने वाली जो कंटेंट है, यानी कि उसका प्रमोटर ऑपरेटर वाला सेक्शन होगा जीन का, और लास्ट में टर्मिनेटर वाला सेगमेंट होगा। तो हमने देखा है कि इसके एक्सप्रेशन लेवल कितना रहता है, हमने देखा है टोटल परसेंटेज ऑफ द सॉल्युबल लीफ प्रोटीन, जब हमने इसको आइडेंटिफाई किया तो हमें पता चला कि ये बहुत ही कम है, लेस देन 0.001% है। इसका मतलब इसकी जो एक्सप्रेसिविटी है वो बहुत ज्यादा कम हो गई। तो हमने क्या किया, हमने उस पूरी जीन को लिया और हमने उसका छोटा सा एक सेक्शन को काट दिया। अब ये कौन सा सेक्शन काटा, ये वो सेक्शन होगा जो यूजुअली हमारे काम का नहीं है। तो हमने क्या किया, ट्रंकेटेड जीन, ट्रंकेटेड का मतलब उसका कुछ हिस्सा हमने काट के शॉर्ट कर दिया। ट्रंकेटेड जीन विद द प्लांट ट्रांसलेशनल कंटेंट, यानी कि प्लांट को ट्रांसलेट कराने वाला हिस्सा तो है, यहाँ पर वो साइट है जिसके ऊपर आपके प्रमोटर ऑपरेटर रीजन्स होंगे, यानी कि वो सेगमेंट जहाँ करके आपके एमआरएनए बाइंड करेगा और इसको ट्रांसक्राइब करना स्टार्ट करा देगा। तो ये प्लांट की ट्रांसलेशनल कंटेंट भी है और ट्रंकेटेड जीन भी है। जब हमने इसको इंसर्ट किया तो हमने देखा पहले से थोड़ी सी हमारी क्वांटिटी बढ़ गई, अब ये 0.01% के आसपास आ रहा है, पहले तो इससे भी कम आ रहा था, इसका मतलब थोड़ा सा कंटेंट हमारा बढ़ गया। फिर हमने दूसरे तरीके की इसमें मॉडिफिकेशन की, हमने इसमें दूसरी क्या मॉडिफिकेशन की है, हमने पार्शियली मॉडिफाइड ट्रंकेटेड जीन ली है, यानी कि उस जीन का कुछ हिस्सा जो हमने पहले काट दिया था, उसको काटने के बाद में कुछ हिस्सा हमने साथ में मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई किस तरीके से कर दिया, कोई ऐसा सेक्शन ऐड कर दिया जिसकी वजह से अब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर आकर के अच्छी तरीके से बाइंड कर सके। तो जो फुली मॉडिफाइड प्लस साथ में ट्रंकेटेड जीन थी, उसके साथ में प्लांट का ट्रांसलेशनल कंटेंट था, यानी कि वो जिसकी वजह से इसका ट्रांसलेशन हो सके। तो हमने देखा कि जो अब पहले से कितना इंक्रीज हो गया है, आप देखो सीधा सीधा 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया है इससे। कितना इंक्रीज है यहाँ, 10 टाइम्स का इंक्रीज है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने अब पूरा का पूरा, पहले तो हमने छोटा सा सेक्शन मॉडिफाई किया था, फिर हमने पूरा का पूरा फुल्ली मॉडिफाइड ट्रंकेटेड जीन लिए प्लांट ट्रांसलेशन कंटेंट के साथ में। फिर देखो यहाँ पर हमने फुल मॉडिफिकेशन करते ही हमें और ज्यादा कितना यहाँ पर चेंज देखने को मिला,
10 टाइम्स पहले से, 10 टाइम्स और ज़्यादा, यानी कि अगर आप इससे कंपैरिजन करो तो 100 टाइम्स, और अगर पहले वाले से कंपैरिजन करो तो 10 टाइम्स एक्स्ट्रा एडिशनल आपको यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिला एक्सप्रेसिविटी का। फिर उसके बाद हमने और ज़्यादा उसके अंदर चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट हमने क्या चेंज किया, हमने फुली मॉडिफाइड ट्रंकेटेड जीन ली प्लस साथ में प्रोटीन टारगेटेड इनटू द क्लोरोप्लास्ट। अब हमने क्या किया, ऐसा टारगेटिंग सिस्टम लिया जिसकी वजह से जो एक्सप्रेसिव सिस्टम है वो कहाँ पर काम करेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो आपके प्लांट के अंदर ही है। तो प्लांट के जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट की आपकी जीन्स एक्सप्रेस होती थी उस मशीनरी को हमने यूज किया। तो जैसे ही हमने क्लोरोप्लास्ट को टारगेट किया, क्लोरोप्लास्ट की ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाले पार्ट को टारगेट किया, तो वहां पता चला कि इसका जो एक्सप्रेशन है वो पहले से भी और 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, यानी कि अब लगभग लगभग 1% आपको रिजल्ट वहां पर मिल रहा है। और देखो टोटल अगर प्रोटीन्स का आपका जितने भी टोटल सॉल्युबल लीफ प्रोटीन थे उसका अगर 1% आपका ये वाला प्रोटीन बन रहा है तो इसका मतलब बहुत अच्छी, बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर बन गया। ठीक है, अब हमने इसकी जगह एक दूसरा काम करके देखा। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, हमने लिया है इस बार नेटिव ट्रंकेटेड जीन, यानी कि जो हमारी एक्चुअल वाली जीन थी उसको हमने बस छोटा सा काटा और उसको पूरी ही जीन को हमने क्लोरोप्लास्ट के अंदर डाल दिया। ठीक है, जब हमने सारा का सारा काम किया कि हमने जीन को पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर डाल दिया तो हमने कितना इफेक्ट देखा कि बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन हो रहा है इसका, कितना 2 to 5%, यानी कि जितने भी टोटल लीफ के ऊपर सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट थे उसका 5% सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्रोटीन है। इसका मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में ये क्रायोटॉक्सिन आपका वहां पर प्रोड्यूस हो गया है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। सर ऐसा क्यों हुआ कि यही वाली जीन जब हमने फुल ली तो इतनी और कम ली तो इतना ज्यादा ऐसा result? क्यों हुआ एक्चुअल में, इसको समझने के लिए ना आपके पास बहुत सारी पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है, हमारे डीएनए के अंदर बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जो कि जीन के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है, बट हो सकता है कि उनका इफेक्ट ना हो। ठीक है, सर अभी आपने देखा था जैसे हमारे पास ये क्राई प्रोटीन था, तो जब तक ये पूरा का पूरा प्रोटीन था तब तक वो एक्टिव था इनएक्टिव था? इनएक्टिव था। उसके अंदर एक सेक्शन को आपने काट दिया तो उसकी एक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि वो एक्टिव फॉर्म में आ गया, और अगर उसमें हो सकता है कि आप और कुछ मॉडिफिकेशन कर दो, थोड़े बहुत काट छाट कर दो, तो वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाए। तो सेम काम होता है हमारे जेनेटिक एक्सप्रेशन के साथ में, उसमें बहुत सारे ऐसे रीजन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हो सकता है जीन के सप्रेसर आकर के वहाँ सेटल डाउन हो जाए और जीन के जो एक्सप्रेशन है उसको सप्रेस कर दे, या जीन के एक्सप्रेशन को पहले के मुकाबले लोअर कर दे। सपोज ये आपकी जीन है, इस जीन में यहाँ पर क्या होगा, ये मानो कि एक प्रमोटर रीजन है। प्रमोटर कौन सा होता है, जिसकी वजह से आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के आसानी से बैठ सकता है इस पर्टिकुलर डीएनए की साइड के ऊपर जहां से उसको अपना ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराना था। उसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है इसका ऑपरेटर, वो पर्टिकुलर साइड जहां पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज सेटल होगा इस डीएनए के ऊपर। और फिर +1 साइट होती है जहां से कि ट्रांसक्रिप्शन अपना स्टार्ट कर देगा। ऐसी होता है ना? यस सर। इसके अलावा एक लास्ट में एक टर्मिनेटर साइट होगी जहां पर जाकर के आपके जो ये ट्रांसक्रिप्शन है इसको स्टॉप कर दिया जाएगा। याद है? इसके अलावा डीएनए के अंदर कुछ और भी ऐसी साइट्स होती हैं जिनको आप कह सकते हो कि ये इसकी सप्रेसर साइट है। ठीक है ना? अब सप्रेसर साइट का मतलब है कि यहाँ से अगर ये पर्टिकुलर साइट जाकर के इफेक्ट करेगी तो इससे बनने वाला प्रोटीन इस पर्टिकुलर साइट को जाकर के ब्लॉक कर देगा और इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो अगर ये सप्रेसर वाली साइट है, वो इस जीन का पार्ट है, तो होगा क्या अल्टीमेटली, ये सप्रेसर जाएगा और इसके एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा रिटार्ड कर देगा, बहुत ज्यादा सप्रेस कर देगा। क्या इतनी बात समझ आई? यस सर। तो हमने किया क्या, हमने इसको ट्रंकेट किया। ट्रंकेट हमने कितना किया कि हमने इतना हिस्सा हटा दिया। अगर इतना हिस्सा हटा दिया तो क्या अब ये पर्टिकुलर रीजन का एक्सप्रेशन कम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सप्रेसर ही नहीं है। सप्रेसर नहीं है तो यहाँ पर आपका जो ये ऑपरेटर साइट है यहाँ पर जल्दी से आपका आरएनए पॉलीमरेज आएगा, इस पर्टिकुलर साइट को ट्रांसक्राइब करेगा, फिर दोबारा एक आपका नया आरएनए पॉलीमरेज आएगा और दोबारा से इसको ट्रांसक्राइब करता चला जाएगा। इसका मतलब इसका मल्टीपल इससे एमआरएनए जल्दी जल्दी बनते चले जाएंगे। कहती बात समझ आई? यस सर। तो बस यही होता है आपका ट्रंकेशन। ट्रंकेशन मतलब आपने कोई ऐसा जीन सेगमेंट हटा दिया जिसकी वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं हो। ठीक है, और बार बार ट्रंकेट करके आपने इसके इफेक्ट देखे। और सबसे लास्ट में हमने क्या करके देखा, हमने नेटिव वाली आपकी ट्रंकेटेड जीन ली जिसको हमने डायरेक्टली आपके क्लोरोप्लास्टिड वाले जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कराया, यानी क्लोरोप्लास्ट डीएनए के अंदर इंटीग्रेट कराया, और एक्सप्रेशन देखा तो वहां पर ओवर एक्सप्रेशन देखने को मिला। ओवर तो नहीं, मतलब हाई एक्सप्रेशन आपको देखने को मिला। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यस सर। ठीक है, तो फिर आई थिंक आपके क्लास का टाइम भी ओवर हो चुका है। हम लोग 5 मिनट सरपास कर गए हैं क्लास टाइमिंग को। तो बस एक छोटी सी और है आपकी एक स्लाइड, इसको और नोट डाउन कर लो, बस उसके बाद में हमारे टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है, इसमें आपको वापस से वही वाले ऑर्गेन्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये ट्रांसजीन है। ट्रांसजीन मतलब कौन सी वाली ट्रांसजीन आपने ली, किस ऑर्गेनिज्म से ली, ठीक है, और कौन सी वाली उसकी ट्रांसजीन थी, और किस प्लांट के अंदर आपने उसको डाल दिया है। ठीक है, उसको डालने के बाद में कौन कौन सी आपकी जो प्लांट स्पीशी थी जिससे बेनिफिट हो रहा है, सॉरी ये आपके सोर्स ऑर्गेनिज्म है। सोर्स ऑर्गेनिज्म मतलब जहाँ से आपने उस जीन को लिया, ये जीन है, यहाँ से आपने लिया है, इसके अंदर डाला है और इसके अगेंस्ट डाला था। ठीक है, बट हुआ क्या, टाइम के साथ में इन सभी ऑर्गेनिज्म ने अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। ये पर्टिकुलर टेबल आपको ये सब चीजें बता रहा है। तो ये आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले आएंगे। देखो कई बार होता क्या है, हम एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, हमें पता है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे पास क्वालिटी भी होनी चाहिए और साथ के साथ क्वांटिटी भी होनी चाहिए आंसर्स में। तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास मटेरियल शॉर्ट रह गया अपने आंसर को एक्सप्लेन करने में, क्वेश्चन को जिस तरीके से ट्विस्टेड आया कि मेरे पास रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कम है। तो वहाँ आपके पास में जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स होंगे, जितने ज्यादा नाम आप याद करके रखोगे, जितनी जीन्स के नाम आपको पता होंगे, जितनी क्राई प्रोटीन के आपको अलग अलग जो उसके जीन के टाइप्स हैं, जैसे क्राई 1A है, क्राई 1B है, ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके पास में ऑल्टरनेटिव्स होंगे, जितने ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, उतने बेटर आप आंसर्स वहां लिख सकते हो, और जितने बेटर आंसर, जितने ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आंसर, उतने ज्यादा आप मार्क्स फेच कर पाओगे। ठीक है, तो ये टेबल आपको उस वे में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जब आपको अपने आंसर्स को इलेबोरेट करना है। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, बस उसके बाद वी आर एंडिंग दिस क्लास। डन, यस सर। सभी ने कर लिया? Yes, sir. चलो, ओके देन, आई एम क्लोजिंग नाउ दिस क्लास। थैंक यू सर। ओके, सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके देन, बाय बाय।